इंडस्ट्रियल यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ लिए थे। यूनिट ऑपरेशंस में डिफरेंट टाइप्स के यूनिट ऑपरेशंस होते हैं, लाइक दे आर कंबशन, देयर वर अदर थिंग्स लाइक फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, बहुत सारे यूनिट प्रोसेसेस थे। ठीक है। उनकी डिटेल्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे, और उनकी इंडस्ट्रियल जो प्लांट्स होते हैं, जिस तरीके से ये प्रोसेसेस किए जाते हैं, वो सब भी आप लोगों ने पढ़ लिए थे। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिट प्रोसेसेस। यूनिट ऑपरेशंस पढ़ लिए थे, यूनिट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट processes they generally involve chemical changes to materials. नंबर वन, ये अपने जहन में याद रखें कि you can have the chemical changes in unit processes. एक तो स्टूडेंट बहुत काम कर रहे हैं, बार बार लोग आ रहे हैं, तो 27 लोग हो गए। बाकी लोगों को बस 2 मिनट्स और टाइम दूंगा, बाकी फिर नहीं एंटर होने दूंगा। So this is generally involving chemical changes as a result of the chemical reaction occurring. ठीक है। chemical changes क्या होती हैं? लाइक इसमें लिखा हुआ है combustion of coal, this is a chemical change. जब आप कोयले को जलाते हैं तो उससे chemical change occur होता है, and you are observing as a result of this chemical change there is the formation of the ash, smoke, along with gases. ठीक है। The entering living materials are, who is turning on this mic? This is, I will mute. ठीक है। जैसे कोयला है, and after that, after the chemical change, you are observing the ash, the gases, the smoke, they are different from each other. So this is in this combustion, coal and air, they are entering to the chem unit process. मतलब वही दो चीजें जो हैं वो रिएक्शन करते हैं, and because of this chemical reaction you are observing because of this chemical reaction you are observing flue gases. Flue gases means the gases which are wasted. ठीक है, मतलब वो एयर में चली जाती हैं। एंड रेजिड्यू मतलब वो जो आपके पास एश बच जाती है आफ्टर कंबशन इन द कंबशन चैम्बर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, ये कोल का जो रिएक्शन इन्होंने शो किया है, ये जनरली दिस इज़ वेरी इजी, सो इसलिए ये लिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम। देयरफॉर कंबशन इज़ अ यूनिट प्रोसेस, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज होता है। तो आप लोगों ने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, कहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। सो यू कैन क्लासिफाई यूनिट प्रोसेस and unit operations based upon the changes occurring in the material inside that chamber or the industrial process. ठीक है, तो उसकी वजह से आप उसको यूनिट प्रोसेस भी कह सकते हैं या उसको आप यूनिट ऑपरेशन भी कह सकते हैं। In simple terms, the process which involves chemical changes are known as unit processes. ठीक है। अच्छा, together with unit operations, मतलब physical conversions, unit processes form the basic building blocks of the chemical manufacturing process. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रीज में जो है ये सिर्फ फिजिकल चेंज इम्पोर्टेंट है या सिर्फ केमिकल चेंज इम्पोर्टेंट है। आप
इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज बोथ दीज प्रोसेसेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट. The unit operations and the unit process both must be carried out simultaneously. Without the unit operation, unit process cannot be carried out. Or without the unit operation, without unit process, unit operations cannot be carried out. मतलब दोनों जो है ये बहुत ज़्यादा important है और दोनों जो हैं केमिकल इंडस्ट्रीज को बनाती हैं. ठीक है. Most chemical processes consist of a combination of various unit operations and unit processes. Okay? So now there are different types of the unit processes. मतलब reactions हम जो बात करते हैं तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि मतलब reactions कितने किस्मों के होते हैं. So the very important reaction is alkylation. Alkylation आप लोगों को पता है, addition of alkyl group to the backbone of the reactant. This is called alkylation. ठीक है. मतलब अल्काइल ग्रुप मीथेन भी हो सकता है, ईथेन भी हो सकता है, बहुत सारे इस कैटेगरी में आते हैं. प्रोपेन आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ते रहते हैं, so you know alkyl groups क्या होते हैं. So addition of alkyl radical with side chain final product is called alkylation reaction. The alkylation process is widely used in organic chemicals and petroleum industries. मतलब अगर आप alkylation process को देखना चाहते हैं, so they are in the organic chemicals. मतलब organic chemicals कौन से हैं? Particularly they are the pharmaceutical industries. We alkylation reaction for a particular tablets or medicines to be manufactured. ठीक है. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप लोगों को पता है कितनी इंपॉर्टेंट है. इस इंडस्ट्री वो भी आप लोगों को पता है जो आजकल मिल भी नहीं रहे हैं पेट्रोल आप लोगों को. तो यू नो द petroleum industry and its importance. So alkylation reaction they are regularly carried out inside these industries. मतलब particularly ये दो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा alkylation reaction किए जाते हैं. Like for example, there is an example आप C double bond C, then single bond C, then single bond C plus इसके साथ प्रोपेन को ऐड करें, so you can carry out alkylation to produce any type of the chain. ठीक है. तो ये alkylation reaction की एग्जांपल है. या चेन को बढ़ाने के लिए हम करते हैं या अल्काइल ग्रुप को एज अ साइड चेन इंट्रोड्यूस कराते हैं इस रिएक्शन में. सिर्फ ये नहीं कि हम चेन बढ़ाते हैं इसमें, ये एज अ साइड चेन भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसको हम अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं. दूसरा है एमिनेशन बाय अमोनोलिसिस. सो यू कैन ऐड एमीन ये क्या होता है कि जो आपका अमोनिया होता है बाय एमोनोलिसिस मतलब कि अमोनिया. ठीक है. The result of this अच्छा इसमें मैं कर देता हूँ फिर मैं आप लोग को 2HCl. Add this thing the slide because this is important. अच्छा मतलब ये जो अमोनिया है you can see it, this is NH3, लेकिन यहाँ पे जो अमीन अटैच हुआ है this is NH2. तो इसका एक H जो है वो इधर क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है. So it means that the ammonia is splitted up into the ammonia is splitted up
एक हाइड्रोजन में और एक अमाइड में, मतलब प्लस आयन में और माइनस आयन में। सो यू कैन सी माइनस जो है वो तो ये इसको EDC लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज इथेन डाई, मतलब डाइक्लोरो इथेन इसको कहते हैं, EDC इसमें लिखा हुआ है। So this amide group from the ammonia, this is attached in place of these two chlorides, ठीक है। So you are seeing ethylene diamine, ये इधर इस पोजीशंस पे आ जाते हैं दोनों amines, और जो H निकल जाता है सो वो Cl के साथ मिलके HCl बनाया जाता है। So this is called ammonolysis, मतलब अमोनिया का स्प्लिटिंग हुआ है। अब ये रिएक्शन जो है, this reaction is used in the manufacture of dye stuffs, मतलब जहाँ पे डाइस की इंडस्ट्रीज आती हैं तो वहाँ पे ये रिएक्शन यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स को, मतलब रंगों को, जहाँ पे रंग की इंडस्ट्रीज होती हैं, और किसी कोई किस्म की इंडस्ट्री जिसमें सिर्फ डाइज कपड़ों के लिए बनाई जाती हैं, डाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ यू कैन सी द organic chemicals are equally against reaction. So you have studied two reactions in this slide, alkylation and amination reaction, ठीक है। ये दो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो तीसरा रिएक्शन जो है दैट इज amination by reduction, वो है amination by ammonolysis। ये जो है ये amination by reduction है, amine का एडिशन है या amine फॉर्मेशन है इन दिस रिएक्शन, बट रिडक्शन भी इक्वली इन्वॉल्व है इसमें। अब इसमें amine कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ये देखें, दिस इज amine ग्रुप, दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नाइट्रो ग्रुप। ये इस तरह नज़र आता है, मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह नहीं होता जिस तरह ये स्ट्रेट चेन दिखाया गया है। आई विल शो इट टू यू, आप लोग देखें तो आई विल ड्रा इट अगेन, आप लोग को शो करता हूँ कि ये किस तरीके से नाइट्रो ग्रुप जो है ये नज़र आता है। सो आर यू लिसनिंग? You can Yes, sir. unmute your mic for a while, मतलब इस तरह नहीं कि शो शुरू करें। Are you people listening? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? सर साउंड ड्रॉप हो रही है सर। जी साउंड ड्रॉप हो रही है सर। साउंड ड्रॉप हो रही है, तो कहीं पे आप लोग मसला हो सकता है, कहीं अब मेरी सर तरफ से यहाँ भी मसला हो सिग्नल सकता फुल है। है सर। इंटरनेट भी है ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। यस सर, ओके। दिस इज इंटरनेट, दिस इज नॉट रियल एक्चुअल हो सकता है, मतलब ये तो जरूरी नहीं है, ये तो मुझे तो पता है, ठीक है। यस सर। So trying the structure, कह रहे थे लेकिन से छुटकारा नहीं है, क्योंकि यू नो
your time is wasted and अब ये किस वक्त तक जाता है, we don't know about this. ठीक है? So now this substrate, this one, sorry. Now see this one. This is looking like this. ये एक CH3 है, ये दूसरा CH3 है और ये बीच में CH है और इसके साथ नाइट्रो ग्रुप है. So this is called 2-nitroparaffin. It is reacting with this nitro group. Nitro group इधर नीचे है. Now see this thing. ये nitro group जो है ये नीचे पड़ा हुआ. So this nitro group, this reacts with hydrogen to produce amine. तो इधर ये नाइट्रो जो है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है. So this is आपने क्या कर दिया है, you removed oxygen. So oxidation reduction reaction आप लोग को याद होगा, oxidation में addition of oxygen होती है, reduction में removal of oxygen होती है. So oxygen is removed from the 2-nitroparaffin and this is converted to isopropylamine. This unit process is used in the manufacture of dyestuffs and organic chemicals. ये याद रखें कि amine का जो group होता है ये mostly हम dyes के लिए introduce कराते हैं किसी भी organic substrate में. So this reaction is also equally used in the dyes industries. फिर है amino oxidation. अब amino oxidation जो है इसमें क्या होता है, you are performing the oxidation reaction by amines. So this is called amine oxidation. Like the reaction is given CH3, CH2, CH3 plus ammonia plus 1.5 oxygen. So this is producing CH2 डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है. ये टू डॉट्स शो किए गए, ये डबल बॉन्ड है. CH2 डबल बॉन्ड CHCN प्रोड्यूस हो जाता है. सो you are converting one of the CH3 group into CN plus इसके साथ H2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है. So this is called acrylonitrile. This reaction is used in the manufacture of plastics and synthetic fibers. मतलब ये reaction भी हम synthetic fibers और plastics industries में use करते हैं. Now moving toward another slide. Another unit process is calcination. इसमें ये रिएक्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है. दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्सिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होता है कैल्सिनेशन रिएक्शन में. सो इसका फेमस एग्जांपल जो है वो लाइमस्टोन का है. मार्बल्स which are calcium carbonates, when you heated them up, they are converted into lime, and which is called calcium oxide, along with the release of carbon dioxide. ठीक है. ये कैल्सिनेशन रिएक्शन जो होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे किया जाता है. ये तकरीबन 1200-1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है. ये कम टेम्परेचर पे नहीं होता. क्या आप लोग कहें कि हमारे घरों में मार्बल होता है तो वो चीज सूरज के साथ कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कभी भी नहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पे नहीं जाता. लाइमस्टोन दे आर कन्वर्टेड टू लाइम बाय हीटिंग देम अप at a very high. I am allowing Yasir Khan but today only, फिर next time मैं उसको allow नहीं करूँगा. So this reaction is used in the cement industry. ठीक है.
ये रिएक्शन हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं एंड यू नो सीमेंट इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. सो दिस यूनिट प्रोसेस इज यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री. इसके अलावा है कार्बोनाइलेशन रिएक्शन. कार्बोनाइलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में या किसी भी रिएक्टेंट में. इसमें हम कार्बोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं लाइक CH3OH में इसके साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है, सो दिस इज कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड CH3COOH. ये जो ये ओ ये this is carbonate. So you introduce this carbonate into the methanolic substrate. This reaction is used in the production of the organic chemicals. You know the acetic acid, ये वैसे भी important है food items के लिए या preservatives के लिए ये produce किया जाता है. So this unit process is equally important and is industrial process. अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस ना होता तो आप लोगों को सोचते. अच्छा, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है, दिस इज अ रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड. मतलब आप किसी भी रिएक्शन में जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस कराते हैं, so this reaction is called carboxylation. This is again used in the organic chemical industry. So carboxylation reaction and the carbonylation reaction are almost the identical reaction. तकरीबन ये दोनों एक जैसे रिएक्शन है. तो उसमें देखें तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है. And carboxylation reaction is again this similar reaction. The next one is combustion reaction. Combustion reaction, this is the most frequently occurring reaction in a chemical industry. ठीक है. ये किसी भी chemical industry का सबसे बड़ा reaction है. इसमें क्या होता है, कोई भी substrate जो होता है in the presence of oxygen, this is converted to carbon dioxide and water. So this is again a chemical, the unit process which is regularly occurring in a chemical industry. इसके अलावा है condensation reaction. In this reaction, water production occurs along with the desired product. मतलब इसमें क्या होता है कि आप दो सबस्ट्रेट को मिला रहे होते हैं तो उसमें एक और सबस्ट्रेट बनता है, मतलब कोई नई चीज़ बनती है, बट आखिर में आपके पास वाटर जरूर बनता है. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन. लाइक बेंजल्डिहाइड जो है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है. ये दोनों एल्डिहाइड्स जब रिएक्शन करते हैं, सो these two, when they react with each other, this will produce cenamaldehyde. ठीक है. ये cenamaldehyde, फिर अगेन ये दो डॉट्स आप लोग देख. सो cenamaldehyde जो है, this is as a result of and you are producing a single aldehyde, that is cenamaldehyde, along with the production of water. So this is again a unit process. इसके अलावा है cracking or pyrolysis. In this unit process, the bonds are broken up. मतलब किसी भी उसमें आप ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ले लें तो उसमें आप बॉन्ड्स को तोड़ दें. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्रैकिंग. ठीक है. सो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक ये एक लंबा सा चेन है. सो यू आर डिवाइडिंग दिस होल चेन इनटू टू चेन्स एट दिस साइड. इस साइड पे आप इसको तोड़ देते हैं. सो 3 कार्बन एक तरफ और 4 कार्बन दूसरी तरफ. So such a reaction is called cracking. This is equally important reaction and very मतलब regularly occurring in petroleum industries.
in order to increase the product, the petroleum products, ठीक है। तो पेट्रोलियम को प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए हम पेट्रोल को बढ़ाने के लिए ये क्रैकिंग प्रोसेस करते हैं, क्योंकि पेट्रोल में गैसोलीन जो फ्रैक्शन है वो जो है ये आपके पास बहुत कम होता है। In order to increase its quantity, you are converting higher petroleum products into gasoline or other petroleum products, ठीक है। मतलब गैसोलीन जो बनता है, पेट्रोल जो बनता है, पेट्रोलियम एक क्रूड होता है ना, तो उससे जो आखिर में आपके पास ये बनता है पेट्रोल, वो बहुत कम होता है। एंड पेट्रोल इज हाईली डिमांडेड, बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी होती है, पेट्रोल की होती है। तो आप पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। द रिएक्शन इज यूज्ड इन पेट्रोलियम डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टिलेशन ऑफ कोल। दिस इज रिटन डिस्ट्रक्शन, मेरे ख्याल से ये वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन द रिएक्शन इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सही नहीं, इंडस्ट्री एंड डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्टिलेशन में भी हम यूज़ करते हैं, उससे भी हम बहुत सारे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।